Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And students, today we are doing topic stoichiometry solutions of class +1. And in my today's video, I will cover the two main topics. One is percentage of solution and second is strength of solution. So first of all, what is solution? In your previous classes, in 9th standard and even in 10th standard, you have studied about mixtures. So what are mixtures? Whenever two or more substances are mixed together in any ratio by mass, then a mixture is formed. Whenever two or more substances are mixed together in any ratio by mass, यानी कि mass wise ratio fix नहीं है, कितनी भी रेशियो में मिला सकते हो, then a mixture is formed. And we know mixtures जो हैं, they are of two types. One is homogeneous mixture and the second one is heterogeneous mixture. Homogeneous means which have uniform composition and heterogeneous mixtures means which do not have uniform compositions. So this is about mixture. Now our question is, what is solution? Solution क्या है? Solutions are the homogeneous mixture containing two or more components having variable compositions. इसका मतलब क्या है? मेनली टू कंपोनेंट्स होंगे, कई बार टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन. उनकी कंपोजिशन वेरी करेगी, कोई चीज कम हो सकती है, कोई चीज ज्यादा हो सकती है, इवन इक्वल भी हो सकते हैं. The one component which is generally in excess, this is called solvent, and the another component which is in small amount, that is called solute. यह है जनरली कि हमारे पास जो चीज ज्यादा है उसे सोलेंट बोलेंगे, जो कम है उसे बोलते हैं सोल्यूट. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में, कई बार इक्वल भी हो सकते हैं. जनरली ये चलेगा कि एक्सेस वाले को सोलवेंट और स्मॉल वाले को सोल्यूट. बट इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें अमाउंट की बजाय हमें इस पॉइंट पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है. द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड, जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सोल्यूट, एंड द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. तो जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं उसे बोलेंगे सोल्यूट और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट. अब एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे सपोज यू आर हैविंग a solution of NaCl in benzene. तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है विच इज सोल्यूट विच इज सॉल्वेंट. हम यहां देखेंगे यू आर हैविंग ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl in benzene, इट मींस NaCl is dissolved in benzene. तो डिसोल्व किसको कर रहे हैं? NaCl को. सो यहाँ सोल्यूट क्या होगा हमारे पास? दैट इज द NaCl. किसमें डिसोल्व कर रहे हैं? बेंजीन में. तो सॉल्वेंट कौन सा होगा? दैट इज द बेंजीन. अनदर एग्जांपल, कई बार हमें क्वेश्चंस में ऐसे आता है, यू आर हैविंग aqueous solution of Ki. Ki is potassium iodide. It means you are having aqueous solution of potassium iodide. Potassium iodide. जब भी मेंशन आता है aqueous solution, aqueous means हमने गिवन सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया है. तो वाटर में डिसॉल्व करने का मतलब डिसॉल्व किसमें किया? वाटर में. तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट. और वो गिवन सब्सटेंस क्या हो जाएगा? सोल्यूट. सो हियर सोल्यूट इज Ki and solvent is water, H2O. One more example. कई बार हमें स्टेटमेंट में मेंशन ही आता है 20 ग्राम of NaOH is dissolved in 80 ग्राम of water.
सब स्टेटमेंट को पढ़ के ही हमें आइडिया लग रहा है विच इज डिजोल्व NaOH, इन विच इट इज डिजोल्व वाटर। सो जो डिजोल्व करते हैं उसे बोलते हैं सोल्यूट। तो सोल्यूट कौन सा होगा हमारे पास NaOH एंड सॉल्वेंट इज H2O। Clear? Now our next topic is we have to study various concentration terms related to solutions. So for studying these concentration terms, we will use some symbols related to solvent, related to solute, and the symbols related to data related to solvent and solute, just like weight, mass, volume, and that's why molar mass, molecular mass. इन सब के लिए जो हम सिंबल यूज करेंगे वो क्या क्या सिंबल यूज करेंगे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, अब हम वो देखते हैं। Some representation symbol related to various terms of solution. First of all, if solvent is represented by A, हमारे पास solvent से related कोई भी डाटा होगा उसे हम कैपिटल A से शो करेंगे, and solute is represented by B. So solvent से related कुछ भी मेंशन करना है उसे कैपिटल A से, solute से related कुछ भी मेंशन करना है उसे कैपिटल B से। Next is mass of solvent. मास है उसे हम स्मॉल w से शो करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट स्मॉल w से। अब यहाँ क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए नीचे सिंबल क्या आएगा A, तो दैट इज WA। मास ऑफ सोल्यूट तो नीचे क्या आएगा B, यानी कि मास के लिए सिंबल क्या है स्मॉल w, सॉल्वेंट है तो A नीचे लिख देंगे राइट साइड सब्स्टिट्यूट वाली पोजीशन पे, और यदि सोल्यूट है तो B। नेक्स्ट है मोलर मास। मोलर मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। अब वही सेम केस, यदि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है तो हम सिंबल क्या लिखेंगे Ma। मोलर मास ऑफ सोल्यूट है तो सोल्यूट के लिए B बढ़ाना है, तब क्या हो जाएगा Mb। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। अब हमें देखना है यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं तो नीचे A आ जाएगा, यानी कि सिंबल क्या बन जाएगा Na। यदि सोल्यूट है तो नीचे क्या आएगा B, क्या बन जाएगा Nb। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल H से शो करते हैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है तो सिंबल के नीचे क्या आ जाएगा A, राइट साइड सब्स्टिट्यूट वाली पोजीशन पे क्या बन जाएगा HA, और यदि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है तो क्या बन जाएगा HB। सो दीज आर सम सिंबल्स। सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, सोल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय B, मास के लिए स्मॉल w, मोलर मास के लिए कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्मॉल n, मोल फ्रैक्शन के लिए कैपिटल H। यदि सॉल्वेंट है तो राइट साइड सब्स्टिट्यूट वाली पोजीशन पे कैपिटल A आ जाएगा, और यदि सोल्यूट है तो राइट साइड सब्स्टिट्यूट वाली पोजीशन पे कैपिटल B आ जाएगा। These are some simple. Now we know WA क्या है, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। WB क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, और हम जानते हैं सॉल्यूशन के अंदर मेनली वन सॉल्वेंट एंड वन सोल्यूट। तो जब इन दोनों के मास को ऐड करते हैं WA प्लस WB, then this is equal to the mass of solution. So WA plus WB is equal to W solution. In case we want WA, then it is equal to W solution minus WB. In case we want WB, then it is W solution minus WA. Next, we know density. Density क्या होता है? This is mass per unit volume. If I say density of a box, तो क्या होगा? Mass of box upon volume of box. The same way से if we say density of solution, तो क्या होगा? Mass of solution upon volume of solution. So this is the formula of density of solution. अब बात आती है कि यदि हमें mass of solution या वॉल्यूम चाहिए तब क्या होगा? Then mass of solution equal to क्रॉस मल्टीप्लाई किया density of solution into volume of solution. और यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो दीज आर सम रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स एंड हेल्पिंग टर्म्स related to various terms of solution. Now our next topic is expressing concentration of solutions, and in this topic we will cover the two subtopics. One is percentage of solution and second is strength of solution. So first of all, what is percentage of solution? Percentage of solution is of two main types. One is percentage by mass,
It is also called mass percentage. And second one is percentage by volume, that is also called volume percentage. अब जो percentage by mass है, this is of only one type, that is W upon W. This is also called mass upon mass, or it is also called weight upon weight. जबकि percentage by volume जो है, it is further of two types. One is W upon V and second is V upon V. It means W means weight or mass, mass upon volume, and second is the volume upon volume. अब क्या है परसेंटेज बाय मास W upon W, क्या है परसेंटेज बाय वॉल्यूम V, W upon V and V upon V. अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. So first is percentage by mass W upon W. आप जानते हैं अभी आपने पढ़ा परसेंटेज बाय मास W upon W, परसेंटेज बाय वॉल्यूम W upon V, परसेंटेज बाय वॉल्यूम V upon V. तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट का साइन है, ब्रैकेट के अंदर एक ऑब्लिक का साइन लगा है और उसके ऊपर भी कुछ लिखा है, नीचे भी. ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर ब्रैकेट में ऑब्लिक साइन के ऊपर जो लिखा है, इट रिप्रेजेंट सॉल्यूट, और जो बाद वाला है इट रिप्रेजेंट सॉल्यूशन. सो अब डेफिनेशन क्या है परसेंटेज बाय मास W upon W. सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट में ऑब्लिक साइन के ऊपर क्या है W. W मींस वेट और मास, सो इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ, अभी ऊपर वाला अक्षर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट को. सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, फिर हम आगे इस परसेंट पे, परसेंट का मतलब क्या है 100. फिर अब आएंगे हम ऑब्लिक साइन में नीचे वाले पे. नीचे क्या है W, W मीन मास. यदि मास है तो क्या लिखना है ग्राम, और यदि यहाँ वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर. अब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे वाला अक्षर, सॉल्यूशन को, तो आप क्या लिखेंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज बाय मास W upon W? It is defined as mass of solute dissolved in 100 ग्राम of solution. अब हम आते हैं इसके फार्मूले की तरफ. परसेंटेज बाय मास W upon W, फार्मूला इसी पैटर्न पे, ये ऑब्लिक साइन हमने लगा दिया, ऊपर भी W नीचे भी W. ऊपर वाला W मास किसका है, सॉल्यूट का, और सॉल्यूट के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं B. नीचे वाला W किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन वर्ड ही यूज होगा, और परसेंट निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100. सो फार्मूला क्या है परसेंटेज बाय मास W upon W क्या है, WB upon W सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. कंडीशन क्या है यहाँ, द यूनिट ऑफ WB एंड W सॉल्यूशन जो है शुड बी ग्राम. इन दोनों का यूनिट ग्राम होना चाहिए. So this is percentage by mass W upon W. Next term percentage by volume W upon V. सेम पैटर्न पे अब ऊपर W मीन मास किसका, सॉल्यूट का, नीचे भी क्या है वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का. तो डेफिनेशन क्या होगी, सेम पैटर्न से चलेगा. इट इज डिफाइंड एज mass of solute dissolved in, वही सेम केस परसेंट है, परसेंट के लिए क्या बोलते हैं हम 100. फिर नीचे आगे V, वॉल्यूम का यूनिट क्या लेना है, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. सो फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम W upon V, ऑब्लिक साइन, ऊपर W लिख देंगे नीचे V लिख देंगे. ऊपर W किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए, इसलिए B. नीचे V किसका है, सॉल्यूशन का, V सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. कंडीशन, द यूनिट ऑफ WB जो है इस यूनिट शुड बी इन ग्राम, एंड द यूनिट ऑफ V सॉल्यूशन जो है इसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर. So this is percentage by volume W upon V. Next is percentage by volume V upon V.
अब यहाँ भी सेम वही है, ऑब्लिक साइन, ऊपर वाला v सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला v सॉल्यूशन के लिए। सो क्या होगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम v अपॉन v क्या है, इट इज डिफाइंड एज, v किसको रिप्रेजेंट करा, वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, फिर आ जाते हैं परसेंटेज साइन में, परसेंटेज को बोलते हैं 100। अब नीचे भी v है, v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, और 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यूनिट की बात करें, सॉरी फार्मूला की, सो परसेंटेज बाय वॉल्यूम v अपॉन v क्या होगा, ऑब्लिक साइन, ऊपर भी लिख देंगे, नीचे भी v, ऊपर वाला v किसका है, सोल्यूट का, उसके लिए b, नीचे वाला v किसका है, सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई बाय 100। अब कंडीशन क्या है यहाँ, द यूनिट ऑफ vb एंड v सॉल्यूशन, दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, शुड बी सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर, ये यूनिट होने चाहिए दोनों के। सो दिस इज अबाउट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात आपको यहां और बताना है, चाहे परसेंटेज बाय मास है, चाहे परसेंटेज बाय मास है, चाहे परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, वी डब्ल्यू अपॉन वी है, चाहे परसेंटेज बाय वॉल्यूम वी अपॉन वी है, इन सब केस में देयर इज नॉट एनी यूनिट, इट मींस सिंबल आएगा सिर्फ यूनिट का, परसेंटेज। एक बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि इन केस यदि परसेंटेज बाय मास गिवन है तो इट इज अंडरस्टूड बिकॉज इट इज ऑफ ओनली वन टाइप, तो दिस इज डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। और यदि परसेंटेज बाय वॉल्यूम गिवन है तो वहां भी वो W अपॉन V का क्वेश्चन होगा यदि कुछ नहीं दिया ब्रैकेट में, क्योंकि यदि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का क्वेश्चन होगा तो ये हमेशा मेंशन आएगा, किसी भी क्वेश्चन को आप उठा के देखेंगे हमेशा मेंशन आएगा यदि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का क्वेश्चन है। सो आवर नेक्स्ट टर्म, our next term is strength of solution and it is related with the percentage by volume। आपने पढ़ा था परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वो भी क्या था, W अपॉन V, आप देखेंगे ये भी क्या है, W अपॉन V। अब क्या सिमिलरिटी है, वहां क्या था, इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम में मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, यहाँ परसेंट साइन था, यहाँ हमने बोला था 100, और फिर नीचे आए थे वॉल्यूम था तो क्या बोला था, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा चेंज, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, अब वहां 100 सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ क्या है 1 लीटर, एंड वी नो 1 लीटर कंटेन 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिर्फ इतना डिफरेंस है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ही है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब फार्मूला, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑब्लिक साइन, ऊपर W नीचे V, ऊपर W किसका है, सॉल्यूट का WB, नीचे V किसका है, V सॉल्यूशन, बट कंडीशन क्या है, V सॉल्यूशन इन लीटर, ये होना चाहिए। एंड यूनिट हम जानते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट का या मास ऑफ सॉल्यूट का यूनिट क्या है, ग्राम, और कंडीशन दी है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, लीटर में, तो द ग्राम पर लीटर। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, percentage of solution and strength of solution. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Stage Kalra. Thanks a lot.